Hi everyone, I once again welcome you all back to Is JEE. This is Sambhav here, your mentor for JEE Mathematics. तो आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक JEE मेन का क्वेश्चन है, JEE मेन लेवल का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी सवाल है अपने में ही। अगर आपने इसे एक बार कर लिया तो आपको ये बहुत ही ट्रिवियल, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं। I'll just mark them. If f of x is this and if g of x is this, so I'll just write these conditions once. What is f of x ka square? Okay, 1 minute. Yes, so we have been given that f of x square plus g times of 4 minus x is equal to 4x cube, right? And हमें क्या दिया गया है, g of x plus g of 4 minus x is equal to 0. What is the value of this integral? That is what we are supposed to find. तो इसमें हम बहुत ही सिंपल लॉजिक से इस सवाल को कर सकते हैं. So the first thing that we must understand in this problem, what is f of x square? What is the nature of f of x square? क्यों? क्योंकि जब भी हम minus a to a f of x dx को evaluate करते हैं, we check whether it is an odd function or an even function. So for f of x square, if we put x, if we replace x by minus x, we again, for f of x square, we will again get f of minus x ka square, that is f of x square. So we get the same function, which means that this function is an even function. Nice. तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो फंक्शन है हमारे पास लिखा गया f of x square, ये एक इवन फंक्शन है. इसका क्या मतलब हुआ? इवन फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस. तो मतलब हम सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ. तो एक तरह से हम अगर यहाँ पर ऐसा कुछ ग्राफ है तो इस साइड दिस विल बी कॉपीड. ठीक है, जस्ट फ्लिप कर दिया एक तरह से. दिस इज द मिरर इमेज. इसका क्या मतलब हुआ कि जो, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है एरिया. तो अगर हम इतने ए पोर्शन को देखें, सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई इधर इतना पोर्शन बन रहा होगा. लेट्स से दिस इज 3 यूनिट्स, then this will be 3 units, and this area has to be same. Okay, now what does the definite integral imply? Integral minus 4 to 4 f of x dx, f of x square dx. Now I know that this is an even function, so I can say that this area will repeat itself. क्यों? Let's say f of x square का ग्राफ कुछ इस तरीके से है. I'll just make a clearer graph on the next slide. So for example, I'm just assuming, I don't know what is the graph of x square, f of x square, but I'm sure that ये एक even function है. तो अगर मुझे f of x square को कभी प्लॉट करना हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट अगर ये ऐसा कुछ नेचर दिखा रहा है इस साइड को, तो इसकी मिरर इमेज कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नेचर दिखा रही होगी, सो दैट दिस बिकम्स अ मिरर इमेज. ओके, तो दिस एक्चुअली इज नॉट दैट सिमेट्रिक कि मैं उसे बना नहीं पा रहा हूँ, बट इन रियलिटी इट विल बी सिमेट्रिक. ओके, तो आई विल जस्ट मेक सम सिंपल एग्जांपल. ओके, एंड यस, लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. आई डोंट नो what is the graph, but I'm just assuming, so this will be just symmetrical. I'm just wish to convey that, okay, because I know that it is an even function. अब हम -4 से 4 के बीच में देखें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा. ठीक है, I'll mark this area as A1 and this area as A2, so I know that A1 is equal to A2. And definite integral from -4 to 4 of this function f of x square dx, since it is a symmetric graph, so I can write, because definite integration का मतलब क्या होता है? Indirectly area under the curve. So I'm just using that. So this is 2 of 0 to 4 f of x square dx. ये उसकी थ्योरी है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे. So this is the logic. Okay. Now twice of integral 0 to 4 f of x square dx आपको ये evaluate करना है. This is the integral that we wish to evaluate. तो ये तो हमारा अभी तक क्वेश्चन हुआ कि क्या हमें इवेल्युएट करना है. अब हमें आगे बढ़ना है कि इसको इवेल्युएट करेंगे कैसे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें f of x square dx को कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये अपना प्रॉब्लम हो गया और अब इसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर 0 to 4 f of x square dx है. क्या मैं f of x square कहीं से निकाल सकता हूँ?
मेरे पास ये दो कंडीशंस दी गई हैं, मैं इनका यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट दीज कंडीशंस। ओके, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स dx is equal to 4x cube and g of x plus g of 4 minus x I'm is 0. Okay, nice. Also मुझे क्या पता है, मुझे ये निकालना है, this integral is also equal to twice of 0 to 4 f of 4 minus x का square dx. This is using the King's rule or King's property. Okay, just for the sake of completion I'm just detailing these things out. I don't think इसकी इतनी ज़रूरत है, ठीक है। Now what I can do, I have to evaluate f of x square, so I have to generate somewhere g of x in this very expression. How can I do that? अगर मैं if I replace x by 4 minus x, my task is done. This can be written as f of 4 minus x का square, ठीक है, plus g of 4 minus of 4 minus x. Now how does this come? This comes from practice, this comes from intuition, ठीक है। कहाँ से आया वो इंट्यूशन? इस वाली चीज से आया, एक यहाँ से आया और एक ये वाला जो एक्सप्रेशन है इससे आया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब। अब हमारे पास क्या है, ये वाली चीज बन जाएगी f ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब फंक्शन है, और हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको जरा रब कर देते हैं और हम वापस आ जाते हैं इस पे। तो प्लस g ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब, ये हमारे पास बन गया। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दिस वाज इक्वल, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा? इससे हमें एक रिलेशन मिल रहा होगा, तो इन दोनों को ऐड करके हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैं पूरे का स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल जस्ट टेक टाइम फॉर राइटिंग दिस आउट, ओके, सो दैट आप लोगों को ये समझ आ सके। 4 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर फंक्शन है, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 4 माइनस एक्स, ये बन गया। इसका वैल्यू आ गया 4x क्यूब प्लस 4 माइनस एक्स का, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब ये वाला फंक्शन, इसका वैल्यू तो है 0। अब हमें क्या मिल गया इससे? हमें एक f में ही रिलेशन मिल गया जो हमारे काम का है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस एक्स का, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो ये निकालना है। तो हमें ये पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं ओवरऑल फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें इंटीग्रल्स को, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ये आ जाएगा अपने पास। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमें ये तो पता ही है, इसका वैल्यू तो अपन ने निकाला है कि ये इतना आएगा। तो इसका वैल्यू अपन को पता है 4x क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब इंटीग्रल 0 to 4 dx, ये हमारे पास आ जाएगा i का वैल्यू। तो पहले से i का वैल्यू कितना आ जाएगा? x की पावर 4 लिमिट 0 to 4, और दूसरे से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 4 माइनस एक्स क्यूब। तो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब dx। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इवेल्युएट करने के लिए 4 माइनस एक्स को t रख देता हूँ, तो माइनस dx का वैल्यू आ जाएगा dt के बराबर। ओके, तो यहाँ से 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस dx का वैल्यू आ जाएगा dt के बराबर। तो अपन इसको माइनस dt लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 इंटीग्रल 0 to 4 प्लस, अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस dt, और यहाँ पर t की लिमिट्स है, तो ये आ जाएगा 4t क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ 0 है, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 4, और x का वैल्यू 4 तो t का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास i का वैल्यू आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो i का वैल्यू आ गया x की पावर 4 0 to what is this value 0 to 4 प्लस, ओके,
minus integral 4 to 0 4t cube dt. ओके फाइन। तो -0 से 4। अब ये भी याद रखना कि a टू b f of x dx लिखो या माइनस ऑफ b टू a। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग नेगेटिव साइन। ये कन्वेंशन रहती है कि अगर हम इस साइड को जा रहे हैं तो वी टेक इट एज पॉजिटिव, और अगर हम रिवर्स में चलें तो इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कन्वेंशन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास i का वैल्यू क्या आ गया, x की पावर 4 0 to 4। और मैं इसको नॉर्मली इसको इस तरीके से लिखूंगा 0 से 4 4t cube dt। दिस इज जस्ट mere calculus, nothing else. This is understanding, this is the development of the ideology that we are developing. तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 4। क्यों? क्योंकि 4t क्यूब क्या होता है, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ कोर्स। 0 to 4 हमारे पास दिया गया है वो वेरिएबल, और x की पावर 4 0 to 4। तो आइडेंटिकली अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 4 की पावर 4। नाउ 4 की पावर 4 निकालना है तो 16 16 आर 256, 4 स्क्वायर 16 और उसका स्क्वायर 256, 256 इंटू 2 512। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512. Do we have some options available? No, it was an integer type. So the correct answer to this is 512. So this was the answer. So guys, this was the question that we solved today. Thank you everyone for watching, and make sure to hit the like button and subscribe to ASJE for more such videos. Have a great time everyone. Jai Hind. Bye.